Hi guys, welcome to the next video in this daily audio practice series. Hope you're doing well. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading and understanding this particular set. Now this says Trump, Cruz, Rubio, Kasich are the leaders of Republican Party, while Clinton, Sanders, Webb and Lawrence are the leaders of the Democratic Party, right? So there are two parties, Republican and the Democratic, and four leaders are given for each party. Before the midterm elections of 2018, Fox News arranged a series of debates between one participant of the two parties regarding the policies of their respective parties. The debates were held in four mid-sized towns named Chattanooga, Providence, Sunnyvale, and Fort Collins. The following table shows the number of debates the four leaders of the Republican Party participated in the four towns, right? So Republican Party कौन था आपका? Trump, Cruz, Rubin, Kasich. तो क्या दिया हुआ है आपको? The following table shows the number of debates the four leader of the Republican Party participated in the following four towns. तो Chattanooga में Trump participated in one debate, Cruz participated in one debate, Rubio in one, while Kasich did not participate in the Chattanooga, right? Now, this is given for each of the members, leaders of the Republican Party. Similarly, this also says the following table shows the number of debates participated into by the leaders of the two parties. So, debate का ultimately meaning वही है, and this is actually explained in the later part of this passage. There were two people involved, one from the Republican Party and the other from the Democratic Party. Right, now the following table. So, for example, if I can read from this, so Trump and Clinton participated in one debate, while for example Rubio and Clinton participated in two debates, and these debates are actually taking place in a particular mid-sized town. So maybe we'll have to figure out the exact combination, right? So for example, we need to tell let's say one person from the Republican Party, let's say Trump, and one person from the Democratic Party, for example Clinton. So if I say, let's say Trump and Clinton are participating in one of the debates, where is that debate taking place? So we'll have to figure out the exact combination for these three variables, right? So that is what we have to essentially figure out in this particular set. And this was also explained in this particular paragraph. For example, Rubio and Clinton. So Rubio and Clinton. So Rubio and Clinton participated in two debates with each other. That is visible from this number also. Cruz and Lawrence participated in one debate with each other, and so on. Now, it is known that out of the 8 participants, 4 Republican and 4 Democratic, only Clinton participated in the debates at all the 4 venues. So, Clinton का अगर आप notice करो, Clinton के total debates कितने हैं? 1, 1, 2, that is 4. It is saying that only Clinton was that person out of the 8 participants who actually participated in debates at all the 4 venues. तो क्लिंटन के ये जो 4 डिबेट्स होने वाले हैं विद वन ऑफ ट्रम्प, वन विद क्रूज एंड 2 विद रूबियो, these have to occur at the 4 given places: Chattanooga, Providence, Sunnyvale and Fort Collins. But we don't know what the order right now. Then only Clinton participated in the 4 venues, while the remaining 3 Democratic participants are these Clinton, Sanders, Webb and Lawrence, participated in debates in exactly 2 of the 4 venues. So जैसे सैंडर्स का अगर आप नोटिस करो तो ये 2 है, वेब का 2 है, लॉरेंस का ये 2 है. So these 2 have to take place in different towns, right? So these cannot happen at the same town. This is clear. Now how do I go about this? तो यहाँ पे ना मैं आपको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस लॉजिक इन डिफरेंट सिनारियोज वेर एवर एप्लीकेबल. लॉजिक क्या है? जैसे अगर आप नोटिस करोगे देयर आर 3 वेरिएबल्स, राइट? ट्रम्प, क्रूज, रूबियो एंड केसिच. पहले तो मैं लिखना चाहूँगा रिपब्लिक पार्टी से दीज आर ट्रम्प, क्रूज, देयर आर 2 C's, राइट? क्रूज. सो ट्रम्प, क्रूज, रूबियो एंड केसिच. सो दीज आर फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टीज एंड द अदर are from the Democratic parties, that is Clinton, I will write the split, then Sanders, Webb and Lawrence. तो अगर आप नोटिस करो तो आपके यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है. द फर्स्ट वेरिएबल इज दीज leaders of the Republican Party. The second is variable is the leaders from the Democratic Party, while the third variable is that place itself: Chattanooga, Providence, Sunnyvale and Fort Collins. Now आपको याद क्या रखना है, क्या आप विजुलाइज कर सकते हो? यहाँ पे आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है ना, इस प्लेस और रिपब्लिकन पार्टी में
सिमिलरली यहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी में देयर इज वन रिलेशन विच इज एक्चुअली मिसिंग. कौन सा रिलेशन हो सकता है? यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे पर्सन और रिपब्लिकन का दिया हुआ है, तो आई कैन मेक अ टेबल ऑफ दैट थर्ड रिलेशन एंड दैट इज दिस प्लेस अलोंग साइड द डेमोक्रेटिक लीडर्स. ये वाला रिलेशन आपका मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल ए बी का रिलेशन दिया है, बी सी का रिलेशन दिया है, ए एन सी का रिलेशन मिसिंग है. तो जो टेबल मैं फॉर्म कर सकता हूँ ना, अ कंसोलिडेटेड टेबल, टू बी वेरी प्रिसाइज, अ कंसोलिडेटेड टेबल मैं उन दोनों वेरिएबल्स के अराउंड बना सकता हूँ. सो इफ आई सिंपली write the places, let's say Chattanooga, Providence, I'll write the short forms, Providence, then Sunnyvale, and then Fort Collins FC. एंड यहाँ पे मैं क्या लेना चाहूँगा दूसरे साइड में, द डेमोक्रेटिक लीडर्स, दैट इज ट्रम्प हो गया, देन सॉरी नॉट दिस ट्रम्प, द डेमोक्रेटिक लीडर्स, सो दैट हैज टू बी क्लिंटन, सो क्लिंट, सैंडर्स, वेब एंड लॉरेंस. ठीक है, लेट्स मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस. नाउ ये टेबल बनाने से एक्चुअली अपने को देखो करना क्या है, क्यों हेल्प करेगा ये. सो आई कंसोलिडेट दीज टू टेबल्स. ये मेरा बेसिक आइडिया था. कैसे करूँगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैटनूगा में देखो, चैटनूगा में एक बार ट्रम्प आएगा, एक बार क्रूज आएगा, एक बार रूबियो आएगा और 0 टाइम्स केसीच आएगा. तो चैटनूगा का ये जो रो है, ये रो में देयर इज 1 टाइम ट्रम्प, 1 टाइम cruise, right? C is for that cruise one, so सिर्फ C लिख सकता हूँ. we can remember this. 1 is for C and the other third time आपका कौन आएगा? रूबियो आएगा. सिमिलरली प्रोविडेंस में आपका एक बार C दिखेगा, सो इस रो में एक बार C आना चाहिए, एक बार R आना चाहिए और एक बार K आना चाहिए. तो C R K we can simply write these. सनीवेल में अगर नोटिस करो तो वो T और K, सिर्फ T और K दो वेरिएबल आएंगे. सिमिलरली फोर्ट कॉलिंस में T C दो बार आपका T और C. एंड सिमिलरली अगर आप इस सेकेंड टेबल से देखो तो क्लिंटन का जो पेयरिंग हुआ है, एक बार ट्रम्प के साथ, एक बार क्रूज के साथ और 2 बार रूबियो के साथ. सो आई कैन सिंपली राइट दिस इज 1 टाइम्स T, 1 टाइम्स C एंड 2 टाइम्स R. सो दिस हैव टू बी 2 टाइम्स ऑफ R. ठीक है. नाउ S के साथ अगर आप कंबाइन करो, S के साथ कंबाइन करोगे सो T आपका एक बार आएगा, एक बार C आएगा, सो T आएगा देन फॉलोड बाई C. वेब के साथ कंबाइन करोगे तो 2 बार आपका K आएगा. एंड फाइनली लॉरेंस के साथ अगर देखोगे तो लॉरेंस के साथ आपका एक बार T आएगा और एक बार C आएगा. राइट. नाउ पॉइंट क्या है ना, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर गया. नाउ आई डोंट हैव टू सी दिस, बिकॉज यहाँ से आना कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन अराइज होता है. राइट. आई एम नॉट सेइंग इट इज एंटायरली डिफिकल्ट, बट जस्ट बिकॉज आई हैव रिटन दीज वेरिएबल्स की कौन से रो में कौन सा अल्फाबेट दिखना है, तो अब मेरा टास्क बहुत आसान है वाला. राइट. अब देखो कैसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. क्लिंटन के लिए याद करो, क्लिंटन के लिए क्या दिया था कि ये जो चारों वेरिएबल है, राइट, T C डबल R, ये चारों वेरिएबल क्या होना चाहिए था, 4 डिस्टिंक्ट प्लेस पे दिखना चाहिए. राइट. T C R R अलग अलग वेरिएबल में दिखेगा. ऑल्सो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ था, बाकी जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे आपके सैंडर्स के, तो ये दोनों आपके डिफरेंट प्लेसेस पे होना था. वेब के ये 2 डिफरेंट प्लेसेस पे होना है और लॉरेंस का ये दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे होना है. तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे अगर एक्सटेंड करूँ, सो मैं सुडोकू की तरह सोचूं कि ये T C डबल R आएगा कहाँ से. सो नोटिस करो यहाँ पे डबल R कहाँ पे फिट हो सकता है. तो डबल R इन रोज में जहाँ पॉसिबल होगा वहीं पे आप रखोगे. फॉर एग्जाम्पल चैटनूगा में अगर आप नोटिस करो तो R है, तो आई कैन कीप एन R हियर. प्रोविडेंस में देयर इज अ R, सो आई कैन कीप अ R हियर. बट इन दोनों में तो R है ही नहीं, तो दोनों जो आपका इन दोनों का R आना है वो एक R यहाँ पे आएगा, एक R यहाँ पे आएगा. अब आप क्या करो, जैसे आप कुछ भी लिखो उसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो R एंड R गो. नाउ रिमेनिंग इज T and C. अगर आप नोटिस करो इस रो में आपका C है ही नहीं, सो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसमें T आना पड़ेगा और इसमें C आना पड़ेगा. सो T C इज डन और यहाँ से भी T और यहाँ से C इज डन. राइट. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन. अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब हमारे पास कौन सी कंडीशन बची, जैसे यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ तो चैटनूगा में T और C आना है, बट अगर आप ये W के करस्पॉन्डिंग इसमें देखो तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 K आ सकता है मैक्स टू मैक्स, यहाँ पे K रखेंगे तो T and C फिर आपका इन्हीं दोनों जगह आएगा. यहाँ पे इट विल बी वेकेंट बिकॉज यहाँ कुछ होना नहीं है. एंड ऑल्सो वी न्यू कि SWL के लिए इन 4 जो ब्लॉक्स हैं, इस कॉलम वाइज अगर आप 4 ब्लॉक को देखो तो 2 ही स्पेस यूज होने वाला है T और C के लिए. सो वी कैन डू दिस ऑल्सो. देन
व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रो, प्रोविडेंस के लिए देखो तो सी एन के है, तो सी एन के आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, सी के भी आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, के की आपके पास, ओके नाउ के कैन बी डन बिकॉज के अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे इन दोनों कॉलम में के है नहीं, सो दीज कैन नॉट बी के, तो के आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सो के इज एक्चुअली डन, राइट। सो इस वाले कॉलम का भी एक के फिट हो गया। देन अगेन अगर आप नोटिस करो जो ये वाला के है वो कहाँ पे जा सकता है, इसमें के जा नहीं सकता बिकॉज यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है के की, तो ये वाला के आप काट दो और कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो, सो दिस इज अगेन के। देन इस वाले का पूरा सेटिस्फाइड हो गया, तो ये सब एम्प्टी होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज डन। नाउ ऑल्सो ये सनीवेल में जो दो आपके होने थे वो भी हो गए, तो वी कैन ऑल्सो क्रॉस दीस आउट, यहाँ पे कुछ भी और कोई डिबेट नहीं होने वाली है। देन व्हाट अबाउट दिस C1, अगर मैं यहाँ पे C को नोटिस करूँ तो C यार यहाँ पे कहीं दोनों जगह आ सकता है, यहाँ पे जो T एंड C है वो भी किसी भी ऑर्डर में आ सकता है बिकॉज नीचे भी जो आपका मिसिंग है वो भी क्या है, T आता है, तो मे बी राइट नाउ आई कैन नॉट यूनिकली से कि फॉर व्हाट इज द रिमेनिंग कॉम्बिनेशन फॉर देम, राइट। अब हम यहाँ से यूनिकली एक्चुअली में फिगर आउट मे बी नहीं कर सकते, सो वी नीड टू गो टू द प्रॉब्लम्स एंड लेट्स सी कि यहाँ से क्या पूछ रखा है, मे बी वी कैन से यूनिकली फॉर अ फ्यू ऑफ द कॉम्बिनेशंस वेल वी कैन नॉट से यूनिकली फॉर द रिमेनिंग वंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से नोटिस करूँ, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द डिबेट बिटवीन क्रूज एंड सैंडर्स, तो क्रूज एंड सैंडर्स एस एंड सी, क्या मैं ये वेन्यू बता सकता हूँ क्रूज एंड सैंडर्स का, सो आई कैन नॉट स्पेसिफिकली से राइट कि क्रूज एंड सैंडर्स में सी कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी आप सॉरी यहाँ पे एक्चुअली में आप इस TNC में यस आप टी लिख सकते हो, बट यहाँ पे तो आपका इसका सी नहीं आने वाला है, सो आई कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे आपका सी नहीं होगा, राइट, बिकॉज इसमें अब आपका टी ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे तो सी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे या तो टी होगा आपका, तो सी यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। बट फिर वो सी अगर आप नोटिस करो तो चैटनूगा और प्रोविडेंस दोनों जगह में से कहीं पे भी हो सकता है, सो आई विल नॉट बी एबल टू यूनिकली से कि एस दैट इज सैंडर्स एंड क्रूज का कहाँ पे होने वाला है, इट कैन आइदर बी चैटनूगा और इट कैन बी प्रोविडेंस, so it has to be the D option. Then when we go to the second problem, this says what was the venue of the debate between Cruz and Clinton. Now Clinton and Cruz का we are definitely saying कि वो सी यहीं पे आने वाला है and that has to be Fort Collins. So the answer for the second problem would be Fort Collins. Then for how many venues? So for how many venues both the participant in all the debates in those places can be uniquely determined. So I can specifically say this for Sunnyvale, right? I can specifically say for Sunnyvale, but I cannot say that for Chattanooga, Providence, or let's say Fort Collins. So एक ही आपका आंसर आएगा for how many venues both the participant in all the debates can be uniquely determined. So it has to be only one. And finally, for how many Democratic leaders? So Democratic leaders कौन से थे? Clinton, Sanders, Webb and Lawrence. So how many of these columns? For how many of these columns can the venues of all their debates be uniquely determined? So I can specifically say for Clinton, I can definitely say Clinton के how many can the venues of all the debates? So I can specifically say कि Clinton के ये जो चारों आपके हुए कहाँ पे हुए? So I can say this for Clinton. For S I cannot specifically say, but then again for this W and that is Webb, तो I can specifically say कि इसके दोनों कहाँ पे हुए, एक प्रोविडेंस में और एक S for Sunnyvale. Again for Lawrence I cannot specifically say, so the answer has to be for two Democratic leaders. I can uniquely specify that, right? So drawing this consolidated table would actually help in this particular scenario, right? So I hope you got this particular set. If you have again any doubts, you can just put that in the comments.